पूरे वर्कशॉप के अंदर मूव करेंगे। चलो, वेरी गुड। नाउ लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड स्टार्ट विद द वर्कशॉप। So this workshop is named Hack IITJEE. That is the reason for, because in this workshop I am going to tell you so much hacks how to clear IITJEE. Obviously, this workshop has been is being designed by top 1% IIT graduates, or simply वो IIT graduates ही नहीं, as teachers who have mentored a lot of top 1% IIT graduates. So it will be a very useful exercise. Now, why we are here? The aim is very clear: to add 50 marks in your IITJEE score. You will learn exactly how to add 50 more marks in your IITJEE mains score. मेरे पास स्टूडेंट्स के कई बार कॉल आते रहते हैं, मैं उनसे डिस्कस कर रहा होता हूँ, सर हाउ टू add more marks into my IITJEE score. Now this will give you a very tangible way to add more marks into IITJEE score. Now who am I? मैं ऐसी बातें क्यों कह सकता हूँ, इसके बारे में तुम्हें लगना चाहिए कि मैं कौन हूँ जिसने बड़े बड़े दावे कर सकता हूँ. So I'm an IIT Delhi graduate. मैं बहुत ही छोटे क्या कहना चाहिए शहर से बिलोंग करता हूँ, a very small town in Madhya Pradesh. I started my journey from here. I was never a very brilliant student, क्योंकि तुम में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा हम इतने ब्रिलियंट नहीं, तो हम IITJEE का एग्जाम कैसे निकाल सकते हैं. तो let me tell you, I was never ever a very brilliant student. I was always a very hard working and sincere student. ठीक है, और कभी ऐसा भी था मेरी लाइफ में कि मैं उतना सिंसियर स्टूडेंट नहीं भी था. So I can connect with all the kinds of students in this world who are sincere, who are insincere, who are hard working, who are not that hard working, who are very brilliant and who are not that brilliant, right? So this workshop is for everybody of you. तो मेरी जो जर्नी है वो स्मॉल टाउन से शुरू होती है. वंस आफ्टर डूइंग माय 11th 10th में नहीं, 11th के बाद मैंने सोचा कि मुझे IITJEE का एग्जाम देना चाहिए, एंड आई मूव टू भोपाल. I started studying from a very small coaching. मेरे एक अच्छे दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया कि नहीं, तुमको यहाँ से नहीं, एक बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करनी चाहिए. I went there. I suffered a lot in that 1 year because of all the things that went on with me in that part year. But मैंने जो हार्ड वर्क किया, मैं दिन भर उठ के जो 12 घंटे 13 घंटे मेहनत करता था, उसके कारण मैंने उस कोचिंग के अंदर लास्ट में ज्वाइन करने के बावजूद बैच को टॉप किया, और फिर भी मेरा IITJEE में सिलेक्शन नहीं हुआ. Then I went to Kota, prepared in Kota for 1 more year. वहाँ मेरी बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि मैं इंडिया के बेस्ट कोचिंग में पढ़ता हूँ, तो मेरे साथ बहुत कुछ पॉजिटिव होना चाहिए. वैसा भी मेरे को कुछ ज्यादा नहीं मिला मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से. स्टिल आई हसल्ड, और जो भी मुझे मिला उसका मैंने बहुत अच्छे से उपयोग किया, एंड आई वेंट इनटू IIT Delhi. After going to IIT Delhi, I met one of the best, most knowledgeable people in the world. Obviously, one of greatest people of my एज ग्रुप, जिनको अपने डोमेन का बहुत अच्छा नॉलेज था, जो बहुत इंटेलिजेंट थे. ऐसे भी लोग थे जिन बहुत इंटेलिजेंट नहीं थे. So I met through all of those people, learned again with my experiences. I became an athlete in IIT Delhi, went on to become the record holder in IIT inter-IIT sports meet of having highest number of gold medals in one meet. आज भी मेरा रिकॉर्ड है. मैंने एक मीट के अंदर 8 गोल्ड मेडल स्कोर करे, और उसके लिए मैं सारे IITs के अंदर काफी फेमस हुआ. Then I passed from IIT. I had this empathy towards the poor in India. So मैंने IAS बनने की भी कोशिश करी, जो कि एक असफल कोशिश थी. मैं IAS नहीं बन पाया. See, again, this was my failure. There was a era of success. There was again an era of failure. I was unable to do it despite trying very hard for 4 years. Then I became an IITJEE teacher, and I realized that those people whom I mentored for IAS all of them became IAS. Again, nobody, not a single one of them was a failure. So I realized this I would be a very good mentor. So from there my journey as a teacher started. I mentored top ranks in IITJEE. मेरे स्टूडेंट की रैंक 27 आई थी, और उसके बाद मैंने कंसिस्टेंटली हर साल टॉप रैंकर्स को, जो टॉप 1000 में टॉप 100 में रहते हैं, उनको कंटिन्यूअसली मेंटर किया, उनको पढ़ाया मैथमेटिक्स. आई एम मैथमेटिक्स फैकल्टी विद ओवर 10 years of teaching experience. Then also simultaneously I started learning Indian classical music for 7-8 years. So it was completely different experience compared to जो मैंने अभी तक किया, because मैं पहली बार किसी गुरु के साथ बैठ के, किसी टीचर के साथ बैठ के 1-on-1 सीख रहा था. ये कभी मैंने लाइफ में आज तक ऐसा नहीं किया, and that experience of connecting with a teacher at a 1-on-1 basis completely transformed me as a human being and make me a real teacher, a real guru in some sense. I also coach students for a football team, and that football team is actually doing very great. One of my mentees there has been selected into the national team of football in India. I am also a yogi. I practice Giri Yoga, and now since last year I have founded this company. I am CEO of Pragti, which is an upcoming ad tech in education.
So it has been a very long journey. I have diverse experiences in many field. और जो भी मैं तुमसे आज शेयर करूंगा वो मैं अपने मुंह से बोलने के बजाय लेट माय स्टूडेंट्स स्पीक. देखते हैं कि उनको मेरे Hello, बारे my में. name is Sanika Deshmukh and I am preparing for IIT JEE examinations which are going to be held in 2021, and I am in connection with Shival sir for close to 4 months now. He has been a great mentor and a good teacher. Being an IITian, he is methodical, analytical, practical and intelligent as well. So he has been mentoring me for over a month now, and I was provided with systematic plans by him in terms of syllabus completion, time management, etc., which helps you to channelize your targets and so you can achieve it with a greater efficiency, and which helped me to sit for long hours, and the procrastination and all the such problems were actually removed and solved. So he is a great motivator as well, and he's available for you 24/7. You can always ask for him anytime, and you can always count on him if you are in need. And his breathing exercises really help, guys. So thank you so much, sir. This is again, yes, somebody has to say something. Let me check. Okay, I will check. This is one of my students. Yes. Hello everyone, my name is Shyanshu. I am a student of BITS Planning Hyderabad campus. My association with Shival sir dates back to my JEE preparation days. He was with me all through my 11th and 12th. One thing I would like to say about him is he's not your standard JEE teacher. Like he brings a lot more things to the table apart from what a standard teacher would bring. He is himself very much a multifaceted personality, having done like almost all the things one can do. Like he's been a sports person, he's a musician, plus he's like for sure he's an academician. He's in the academy for a long time. So like as I said, he's not your standard day teacher. He brings a lot more things to the table. Secondly, he's a great mentor. Now when I say he's a great mentor, like being a mentor and being a teacher are two different things. A teacher will teach you, a mentor will guide you, and like obviously he'll teach you also. So if you'll find a great mentor in him. That's the reason even I'm in college but still I'm in like close association with him, because teaching for JE ends after class 12, but mentoring could continue for further like further. His contribution in my his contribution in my case is he has helped me a lot in landing into a decent college, though he doesn't know that. His contribution is way large than he thinks it is. Like like he doesn't know like what things I've derived from him, but those things are like extremely valuable. I recommend not I can't recommend everyone. Like I recommend him strongly if you can choose him to be your mentor for your preparation. That's it. Thank you. So I don't want you to be choosing me for life as such, जैसे श्रेयांशु कह रहा था. But I just want you to believe me for this 3 days कि इन 3 दिन के अंदर आप मुझ पे बिलीफ रखो, और जो मैं बता रहा हूँ एटलीस्ट उसको पीसफुल माइंड से सुनो, और अगर आपको ठीक लगता है तो ट्राई एंड फॉलो इट, राइट. Very humble, like very humble request, right? So if you are on this page, then write, if you believe me, write B in the chat box, right? B in the chat box, and then we can start. So now whatever I'm going to tell you in this session is fundamentally a combination of academics, music, sports, and yoga psychology that I have learned all through my life. So what will be my role in whole of this workshop? It will be very clear. मैं तुमको नई skills दूंगा, नई strategies दूंगा, ऐसी methods बताऊंगा जिससे आप अपनी time limits maintain कर सकते हो, time management better कर सकते हो, performance को extremely मतलब overnight improve कर सकते हो, और सही तरह का mindset develop कर सकते हो, जो इस exam को clear करने के लिए बहुत जरूरी है. तुम्हारा रोल क्या होना चाहिए? बी इन अ वेरी डिसिप्लिन मैनर, बी पोलाइट, रेगुलर, सिंसियर. हर दिन आओ एटलीस्ट वर्कशॉप में. ऐसा नहीं कि एक दिन के बाद हम गोल हो गए पर आपको कुछ फायदा नहीं होगा. बी वेरी सिंसियर व्हाइल व्हाटएवर आई एम टेलिंग यू. सिट विद अ पेन एंड पेपर, ट्राई टू नोट एंड टेक एज मच एज फ्रॉम दिस वर्कशॉप एज यू कैन, बिकॉज दिस वर्कशॉप्स आर फ्री. तुम्हें कुछ भी पे नहीं करना इन वर्कशॉप्स का. So try to take as much as you can from these workshops.
एंड ट्राई टू कम्युनिकेट। जब भी तुम्हें ऐसा लगता है कुछ समझ में नहीं आया, कोई इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं थे, कोई बात मेरे मन में जो मैं कहना चाहता हूँ, पुट मी अ डीएम। तो मैं ग्रुप नहीं ओपन करूंगा मैसेजेस के लिए, बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूपिड पीपल कम एंड राइट स्टूपिड थिंग्स इन दोस ग्रुप्स। वो सबके लिए न्यूसेंस होता है। सो यू कैन पर्सनली मैसेज मी। जो आपका प्राइवेसी का एडमिन नंबर है जिसके अंदर सारे मैसेज आते हैं वो मैं ही पोस्ट करता हूँ, तो आप मुझे डायरेक्टली उस पर कम्युनिकेट कर सकते हो। आई विल ट्राई एंड आंसर एज मच एज ऑफ योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज आई कैन। Now how students think, now this is a very peculiar thing that I'm going to tell you. सारे स्टूडेंट्स कैसे सोचते हैं जेईई प्रिपरेशन के बारे में, उनका एक कॉमन पैटर्न है। वो पहले सिलेबस खत्म करेंगे, फिर वो रिवीजन करेंगे, फिर रिवीजन टाइमली खत्म नहीं होगी क्योंकि सिलेबस टाइमली खत्म नहीं हुआ था, तो उनकी टेंडेंसी होगी टेस्ट को एस्केप करने की, कि इससे हम बच जाएं किसी तरीके से, टेस्ट से हमारा इवैल्यूएशन ना हो। फिर एक इमोशनल रोलर कोस्टर चलेगा अंदर से, है ना। वो रोलर कोस्टर क्या होता है कि पता नहीं मेरा होगा, पता नहीं मेरा नहीं होगा, पता नहीं मैं इस एग्जाम को फोकस करूं, मैं इस एग्जाम को नहीं फोकस करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं, ऐसा उनका एक रोलर कोस्टर चलेगा। वो मल्टीपल एग्जाम से फोकस करने की कोशिश करेंगे और अल्टीमेटली उन्हें कहीं से भी वो रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा जो वो डिजायर करते हैं, ठीक। और ये एक विशियस साइकिल चलती रहेगी। फिर वो और थोड़े सिलेबस से फोकस करने की कोशिश करेंगे, फिर वो नहीं होगा, एक के बाद एक एग्जाम्स आते जाएंगे। पहले जेईई आएगा, फिर जेईई के 4 अटेम्प्ट्स के बीच में बोर्ड्स आ जाएगा, बोर्ड्स खत्म होगा, बिटसेट आ जाएगा, वीआईटी आ जाएगा, कई एग्जाम्स आ जाएंगे और इस पूरी चीजों के अंदर कहीं भी रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा। So very few students actually break through this vicious cycle of IIT JEE preparation, and those are the students who actually clear this exam. So what is the moral of this story? The moral of this story is you should choose one exam. देखो, वन एग्जाम का मतलब नहीं है कि एक ही एग्जाम में सक्सीड होंगे। वन एग्जाम का मतलब ये है कि हम एक एग्जाम पे फोकस करेंगे और बाकी सारी प्रिपरेशन को उसके साथ इंटीग्रेट करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल कि आप मैक्सिमम लोग इस वर्कशॉप का टाइटल अगर आईआईटी जेईई मेंस पढ़ के आए, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने आईआईटी जेईई मेंस को अपना फोकस बना रखा है। यू शुड फोकस ऑन दैट एग्जाम, और बोर्ड्स की प्रिपरेशन को उसके साथ करना चाहिए, या आप एडवांस की प्रिपरेशन को करें तो उसके साथ करना चाहिए। एक वो स्टूडेंट भी हो सकता है जो बिटसेट के बारे में ऐसा सोचे, दैट इज फाइन। एक ऐसा स्टूडेंट भी हो सकता है जो एडवांस के बारे में सोचे, दैट इज आल्सो फाइन। बट यू शुड चूज वन एग्जाम एंड फोकस ऑन दैट वन एग्जाम। नेक्स्ट, ये पहला हैक था। दूसरा हैक था कि व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटजी टिल मींस टू गेट ऑप्टिमम रिजल्ट। अब यहाँ पे बहुत सारे जार्गन ऑफ वर्ड्स हैं, ठीक है ना। व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटजी, पहले तो स्ट्रेटजी, दूसरा ऑप्टिमम और तीसरा रिजल्ट। तो व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिमम रिजल्ट? हर स्टूडेंट को ऐसा लगता है मुझे एग्जाम 4 देना है, बट व्हाट डू वी मीन बाय कि 4 देना है, मतलब करना क्या एग्जाम में जाके जिससे फूट जाएगा, राइट। सो दिस इज व्हाट ऑप्टिमम रिजल्ट मींस। देखो, अगर हम तुम परसेंटाइल और साथ में कॉलेजेस हैं, हम क्या क्या परसेंटाइल पे हमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं जेईई के अंदर, है ना, ये एकदम क्लियरली दिया हुआ है। तो अगर आपको टॉप एनआईटीज में जाना है तो आपका 99 परसेंटाइल प्लस होना चाहिए। अगर आपका 98 परसेंटाइल प्लस है तो आपको एक गुड एनआईटी के अंदर कोर ब्रांच मिल जाएगी। What do I mean by core branch? Core branch means computer science, electronics, mechanical, chemical, civil, इसी ऑर्डर के अंदर जनरली फिल होती है। अगर हम 98 परसेंटाइल प्लस लेके आ जाएं तो हमको बहुत सारे कोर ब्रांचेस मिल सकती है मिडिल एनआईटीज में भी। तो देयर आर गुड एनआईटीज, देयर आर मिडिल एनआईटीज। ओके, फाइन। अच्छा, you can just type the, if you have any questions then you can type the questions. I will, जैसे ही मैं खत्म करूंगा, I will take up your questions in the middle also, so don't worry, you can just write your questions, I will take them. Now once that is there, that is into picture, now you can very clearly see that in this कि अगर तुम्हें क्या लगता है कि कितना परसेंटाइल इसके अंदर होना चाहिए इस एग्जाम के अंदर कि हमारे सामने डिसेंट ऑप्शंस हो, वो तुम चैट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताओ कि सर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा इस एग्जाम में इतना परसेंटाइल होना चाहिए, so that कि मुझे लगता है कि that is more than enough. Good. बताओ, एक परसेंटाइल कोट करो जो मैंने अभी स्क्रीन के ऊपर लिखा था। तुम्हें क्या लगता है मिनिमम इतना तो होना चाहिए? 99.9। अच्छा, अरे गुड गुड। नहीं, देखिए, चाहते तो हम यही कि हमारा 100% आइल हो, लेकिन व्हाट इज द मिनिमम दैट यू कैन लिव विद? देखो, एक तो वो चीज होती है जो हम चाहते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है, हम कुछ चाहते हैं और कुछ हमें मिलता है, और एक ऐसी चीज होती है जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। आई एम टॉकिंग अबाउट ड्रॉइंग दैट बेस लाइन। आपको क्या लगता है बेस लाइन क्या होनी चाहिए? अच्छा, देखो 99, 95 टू 100, ठीक है, मतलब मैं उसको 95 मानूंगा। अगर आप 95 टू 100 बोलोगे तो मैं उसको 95 मानूंगा। ओके, 97, ठीक है। मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, वो तुम देखो अगेन, ठीक है। अगर हम आगे देखें तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए कि व्हाट विल सर्व योर पर्पस। मुझे लगता है कि अगर एक इंसान को इतना भी मिल जाए तो उससे वो दुखी नहीं होगा। मतलब ऑब्वियसली बात है, खुशी तो मुझे भी टॉप एनआईटी के अंदर जाके कंप्यूटर साइंस बनने पर ही होगी, लेकिन अगर मेरा इतना भी आ जाए तो मैं दुखी नहीं होऊंगा। कि मेरा 98 परसेंटाइल प्लस आ जाए तो मैं जनरली खुश रहूंगा, ठीक। नाउ हाउ डज इट ट्रांसलेट्स इनटू मार्क? मतलब इसके लिए मुझे क्या मार्क्स लाने चाहिए? ये 2020 तक के स्टैटिस्टिक्स है।
मतलब हमारे इस साल के पहले के जो एग्जाम्स हुए तब तक के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से क्या होना चाहिए। मैं आपके 5 अटेम्प्ट के स्टैटिस्टिक्स भी डिस्कस करूंगा और वो स्टैटिस्टिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन अभी आप पहले इसको देखोगे, आप देखो कितने मार्क्स आने चाहिए। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो इसके लिए हमको टोटल पेपर के अंदर 198 से 97 परसेंटाइल के बीच में जाने के लिए हमको 130 टू 145 मार्क्स चाहिए। अगर हायर साइड ले तो 145 मार्क्स। इसके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अब 145 मार्क्स हैं अगर मुझे लाने, तो हायर ऑन हायर साइड मुझे 36 क्वेश्चन सही करने चाहिए। 36 क्वेश्चन सही करने के लिए है, ठीक है ना, मुझे पर सब्जेक्ट के अंदर लगभग 12 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। और लगभग अगर 12 क्वेश्चन मुझे हर सब्जेक्ट में सही करने पड़ेंगे तो मुझे लगभग 14-15 से ज्यादा सवाल नहीं अटेम्प्ट करने चाहिए, है ना। तो अब मुझे अगर 15 ही सवाल अटेम्प्ट करने हैं और एक टॉपिक के अंदर लगभग 30 टॉपिक्स एक सब्जेक्ट के अंदर, तो अगर मैं देखूं तो मुझे 50 टू 60% सिलेबस ही कवर करना पड़ेगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है वो भी हम देखेंगे, लेकिन एक तो हम यहां से समझ पाए कि 50-60% सिलेबस तक कवर करना चाहिए। नाउ हाउ आर दिस स्टैटिस्टिक्स वेरिंग इन 2021 अटेम्प्ट, क्योंकि देखो 2021 के अंदर 4 अटेम्प्ट्स का कॉन्सेप्ट आ गया, बहुत कुछ क्रांतिकारी हो गया। वो जो 5 क्वेश्चन है वो और ऐड हो गए, तो देयर आर नाउ 30 क्वेश्चंस इन वन सब्जेक्ट, जिसमें आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। एंड हाउ हैज दैट इंपैक्टेड आवर कट ऑफ्स, अब ये देखते हैं। तो दिस इज द डेटा जो जेई ने नहीं रिलीज किया, मैंने अपने स्टूडेंट से कलेक्ट किया। तो अगर इस बार के स्कोर्स देखो तो तुम हर शिफ्ट के अंदर स्कोर वेरी कर रहा है। अब इस बात को नोटिस कर सकते हो, हर शिफ्ट के अंदर देयर इज अ डिफरेंट स्कोर। ऐसा नहीं कि किसी भी शिफ्ट के अंदर सेम स्कोर है। अब देखो हर देयर इज एन ह्यूज वेरिएशन। देखो कहीं 95 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए 150 प्लस मार्क्स चाहिए, 165 मार्क्स चाहिए, और कहीं स्कोर करने के लिए 112 नंबर ही चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर आप सबका एवरेज निकालोगे तो आपके पास वही नंबर आएगा जो हमने पहले देखा था, राइट। एंड अब तुम देखोगे अभी तुम 6 दोगे, 5 में तुमने 6 दिए, तो ऐसे करके तुम अप्रोक्सीमेटली 24 अटेम्प्ट्स दोगे, और इन 24 अटेम्प्ट्स के अंदर सब कुछ एवरेज आउट होकर वही बनेगा जो हमने पहले देखा था, लगभग वो स्कोर हमारे पास फिर से आ जाएगा, राइट। So this is a very important analysis to know. तो moral of the story is you should have command into 50 to 60% syllabus. तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या गड़बड़ करते हैं, वो पूरे सिलेबस के पीछे पड़े रहते हैं, वो पूरे पेपर के पीछे पड़े रहते हैं। पेपर में जाके आपको क्या करने की जरूरत है, आपको 60% सिलेबस को ढंग से चूज करना है और उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्योंकि अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं करोगे तो क्या होगा, डिजास्टर होगा। आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन को लेके पेपर में टोटली श्योर नहीं होगे, और अगर टोटली श्योर नहीं होगे तो 60% मार्क्स भी नहीं आएंगे पेपर के अंदर। तो हमें पेपर के अंदर कुछ ऐसा कोर एरिया डेवलप करके जाना पड़ेगा कि इतने में से तुम कुछ भी पूछ लो, मैं आंसर कर दूंगा। मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लाइक दिस क्लैरिटी इन प्रिपरेशन। वो सारे कोर्स को, सिलेबस को टारगेट करते हैं, और जब आप हर चीज को टारगेट करते हो तो फंडामेंटली स्पीकिंग आप किसी को भी टारगेट नहीं करते, आपकी प्रिपरेशन बहुत जनरलिस्टिक हो जाती है, और तुम जनरल प्रिपरेशन करके जेईई का एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव टारगेटेड अप्रोच टुवर्ड्स आईआईटी जेईई प्रिपरेशन। टारगेट 50 टू 60% सिलेबस, राइट। अब मैं तुमको एक एक्टिविटी देता हूँ, लेट अस डू दिस एक्टिविटी। पेन एंड पेपर निकालो अगर तुम्हारे पास है तो, एंड आई एम गिविंग यू 1 मिनट। जब तक मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ आप सुनते भी रहो और अपना पेन एंड पेपर इकट्ठा भी करते रहो। So this activity is very simple. What I will do is, ये मेंस जेई 2020 का 2 सितंबर का शिफ्ट 2 का पेपर है। हम क्या एक्टिविटी करने वाले हैं इस पेपर के अंदर, देखो मैं इस तरह से तुम्हें सारे क्वेश्चंस दिखाऊंगा। क्वेश्चंस के ऊपर, ये मैथ्स के सारे क्वेश्चंस है 25, इसके ऊपर टॉपिक लिखा हुआ है। आपको एक लिस्ट के अंदर बस ये नोट करना है कि क्या इस टॉपिक पे आपकी कमांड है या नहीं, मतलब क्या ये टॉपिक आपको आता है या नहीं आता, क्या आपने टॉपिक पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा, आपको लगता है कि आपको टॉपिक आता है नहीं आता, है ना। तो आपको क्या करना है, अगेन टॉपिक को देखना है और क्वेश्चन के ऊपर, और वो क्वेश्चन नंबर नोट कर लेना है। जब ये पूरी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी तो मैं आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। दैट क्वेश्चन वुड बी कि इन 25 क्वेश्चंस के अंदर से आपको कितने क्वेश्चंस, आपको ऐसा लगता है कितने क्वेश्चंस उन टॉपिक में से आए जो आपको आते थे, ठीक है ना। वेरी वेरी सिंपल एक्टिविटी। आपको बस ये बताना है कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपने अभी तक पढ़ रखा है, जितना सिलेबस कवर कर रखा है उसमें से आते थे, राइट। अगर इस स्टार्ट करें इस एक्टिविटी को, अगर करना है तो एस आप टाइप करो चैट बॉक्स के अंदर, सो दैट आई नो कि यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट एस इन द चैट बॉक्स। Yes, beta, this analysis which has been true for last 10 years will not change for 2022. Yes, good. Good, 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 good. I am getting very good responses from you. You are a very energetic batch. Very good. Let us start. Question number 1 was from sequence series. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि किसी ने कोई ना कोई क्वेश्चन मिस आउट किया होगा। तो मैं फिर से एक बार 1 से शुरू करता हूँ, बस फास्ट जाऊंगा आपकी बार। आपने जो मिस आउट किया आप नोट कर लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। आई गेस सब लोगों ने कर लिया होगा। मैं आपके एक बार कमेंट्स भी देख लेता हूँ, आप क्या कमेंट्स कर रहे हो। ओके ओके फाइन। अच्छा, आप नहीं देख पा रहे हो चैप्टर नेम, कोई इशू नहीं। मैं स्क्रीन के अंदर क्या करता हूँ, स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, what I will do is I will do it again for you guys. It was a very simple exercise. कितने लोग ऐसे जिनको नहीं दिखाई दिया? Can they just let me know so that I could do it once again? Okay fine. ठीक है, मैं बहुत फास्ट एक बार कर देता हूँ। अगर आपको नहीं दिखाई दिया तो आप इजीली कर सकते हो। ये देखो 1, 2, अब आपको कोई इशू नहीं आएगा आई गेस। ठीक है, अगर सबने कर लिया होगा, अब तुम्हारा काम क्या है देखो। अब तुम्हारा काम शुरू होता है, मेरा काम खत्म हो गया। अब आपका काम शुरू होता है। आपको क्या करना है, मुझे बताना है बेसिकली। चैप्टर नेम, आपने कितने चैप्टर्स इसमें से ऐसे थे, कितने चैप्टर्स इसके अंदर से ऐसे थे जो आप, जिनके जितने क्वेश्चंस जो चैप्टर में से है, जो आपको लगता है 25 के अंदर से वो आपको आते थे, वो नंबर यहाँ पे लिखो। उस नंबर को आप चैट बॉक्स के अंदर लिखो। यस, ओके 8, गुड। आई जस्ट वांट यू टू राइट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आउट ऑफ दिस 25 क्वेश्चंस, जितना आपको ऐसा लगता था कि जो मैंने पढ़ रखे हैं उसमें से क्वेश्चंस है। 6, 8, 6, ओके, कोई इशू नहीं है। अगर आप 11th में हो तो आपके लिए वैलिड नहीं है क्वेश्चन उतना ज्यादा इस पॉइंट ऑफ टाइम। बट यू कीप लिसनिंग, यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। वो गलतियां जो तुम्हारे साथ आगे आने वाले साथ में सब लोग करेंगे, राइट। 10 to 11, 14, ठीक है। किसी का 7 भी है, किसी का 8 भी है, किसी का 19 भी है, गुड। 19, 14 to 15, गुड गुड। और बताओ, चलो फाइन। मतलब देखो काफी लोग ऐसे हैं अपार्ट फ्रॉम फ्यू पीपल जिनके पास भी टाइम है। आपको एक्चुअली इस पेपर के अंदर 15 सवाल आने चाहिए थे। आपको 15 सवाल के टॉपिक्स ढंग से आने चाहिए थे। अगर 15 भी अगर आपको आते हैं तो आप 99 परसेंटेज स्कोर कर सकते हो, क्यू स्कोर कर सकते हो। एक सब्जेक्ट में 60 नंबर लेके आए सही करने के बाद। 15 सवाल आपने चूज करके सही करे पेपर के अंदर, और उन 15 क्वेश्चन के कारण अगर आपके 80 मार्क्स आ गए, 60 मार्क्स आ गए, तो 60 into 3 will become 180, and 180 is a very good score in this, believe me। हमने पीछे स्टैटिस्टिक्स देखी,
तो स्टैटिस्टिक्स से आप क्लियरली देख सकते हो कि 180 विल गेट यू 99 परसेंटाइल। ठीक है, तो अगर 15 सवाल हम सही करते हैं, एक दो गलत भी हो जाए तो इतना इशू नहीं है। मेरे ख्याल से अगर आप 150 तक भी स्कोर कर लेते हैं, मतलब 50 मार्क का भी सही कर लेते हैं पेपर के अंदर, तो इट विल बी मोर देन। ठीक है, ठीक है, वो सारी हम सब्जेक्ट वाइज प्रॉब्लम मैं आपको टाइम दूंगा, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, नो वरीज। मैं आप मुझे डीएम छोड़ सकते हो, वी कैन आल्सो डिस्कस इट ओवर अ कॉल आल्सो, दैट इज नो वरीज। हम अपने मुद्दे के ऊपर फोकस करते हैं पहले, देन आई विल टेक दिस काइंड ऑफ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चंस। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड पॉइंट। अब मैं आपको यहाँ पे एक बताता हूँ कि 50 to 60% सिलेबस अगर आपने कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रखा तो उसको चूज करने के पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं। तो ये मैं मैथमेटिक्स के लिए बता रहा हूँ, मैं सिमिलर डेटा आपके साथ फिजिक्स में भी शेयर करूंगा, एंड आई विल ट्राई एंड डू इट फॉर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का प्रॉमिस नहीं कर सकता, बट आई विल ट्राई एंड डू इट फॉर केमिस्ट्री। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, जो आप अगले 2 स्लाइड्स में देख रहे हो कि एनालिसिस आपने कहीं नहीं देख रखा होगा। इनफैक्ट तो मैं इस एनालिसिस के लिए क्या करता हूँ, एक एक्सेल शेयर करता हूँ, यू ट्राई एंड, ठीक है, आई एम व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन, यस यू आर राइट। ठीक है, ये जो डेटा है, अगर आप ये डेटा आपने इस तरह का एनालिसिस कहीं भी नहीं देखा होगा, इसको आप देखोगे तो आप कुछ नई चीज रियलाइज करोगे जो आपने आज तक नहीं करी। ये देखो, ये बेसिकली आईआईटी जेईई का इस बार की जो 6 शिफ्ट में पेपर हुए हैं उनका डेटा है, हर चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए। ठीक है, तो आई हैव कवर्ड ऑल ऑफ द चैप्टर्स हियर। देखो 35 चैप्टर्स में यहाँ पे लेके गया हूँ, 35 नहीं, अप्रोक्सीमेटली 30 होंगे, शायद कुछ नंबर्स मिसिंग हो बीच में, नहीं एग्जैक्टली 35 चैप्टर्स। इन 35 चैप्टर्स के अंदर से कहाँ क्वेश्चन मिसिंग थे और किन किन टॉपिक से आप देखो लॉग से एक शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है ना, धीरे धीरे तुम मूव करो, है ना। अब उसमें देखो यहाँ तक, जब तक मैं बायनोमियल थ्योरम तक आया, देयर इज नो कंसिस्टेंट पैटर्न, कहाँ से कितने आ रहे हैं। सीक्वेंस सीरीज से एक सवाल भी आया, 3 सवाल भी आए, ठीक है ना। पीएनसी से एक क्वेश्चन से लेके 2 क्वेश्चन हमेशा है, प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन हमेशा है। तो ये 2 टॉपिक तो कंसिस्टेंट थे, पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी, बट बाकी जगह कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई दे रही। अब मैट्रिसेस में तो है, देखो डिटरमिनेंट्स में उतनी कंसिस्टेंसी नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी नहीं है, एक पेपर में क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है ना। ऐसे अगर हम देखें तो पूरे चैप्टर के, इनफैक्ट अगर ट्रिग्नोमेट्री में देखो तो बहुत ही ज्यादा स्कैटर्ड क्वेश्चंस हैं। जो चैप्टर सबसे डिफिकल्ट कंसीडर किया जाता है ट्रिग्नोमेट्री में, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, उसके अंदर से एक ही सवाल डन। सेट्स के अंदर अगर हम देखें, सेट्स, अब देखो सेट्स के अंदर देखें तो एक क्वेश्चन आया है इतने सारे शिफ्ट के अंदर। किसी भी अगर इसमें फंक्शंस को अगर हटा दिया जाए एक और एक एओडी को हटा दिया जाए, तो अगेन दिस टॉपिक्स आर नॉट कंसिस्टेंट। देन वी मूव ऑन टू इंटीग्रल कैलकुलस। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो अगेन देयर इज नो कंसिस्टेंसी अपार्ट फ्रॉम डेफिनेट इंटीग्रल्स। उसके अंदर 1 से लेके 3, स्टिल द रेंज इज वेरी वाइड, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखो, इसमें भी कुछ तुम्हें पैटर्न नहीं दिखाई देगा, अगर स्ट्रेट लाइन को हटा दिया जाए तो स्ट्रेट लाइन के अंदर है एक पैटर्न। 3D के अंदर देयर इज कंसिस्टेंसी, मैथमेटिकल लॉजिक में भी अगेन देयर इज नो कंसिस्टेंसी। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि हम अपार्ट फ्रॉम फ्यू टॉपिक्स लाइक 3D, स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल्स, रिलेशंस, एओडी, और यहाँ पे अगर हम बोले तो मैट्रिसेस, पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी, अगर ये 5-6 टॉपिक्स को छोड़ दे तो कहीं भी देयर इज नो कंसिस्टेंसी, अगर हम इस डेटा को ऊपर देखते हैं। अब आप देखो, मैंने एक नया एनालिसिस किया है, ये एनालिसिस बहुत ही रेलेवेंट है। इफ वी टेक सेक्शंस, मतलब मैं अलजेब्रा को एक सेक्शन मान लूं, ठीक है, और उसमें देखूं तो क्या हुआ। अगर मैं उसमें देखूं, अगर मैं हर शिफ्ट में नोटिस करूं तो देयर इज ए पैटर्न आउट ऑफ इट, कि हर शिफ्ट में 9 से लेके 11 सवाल इसके अंदर से आए, हमेशा इस सेक्शन के अंदर से आए। मतलब जिसने अलजेब्रा ढंग से प्रिपेयर किया होगा उसने एटलीस्ट पेपर के अंदर 10 सवाल सही कर दिए होंगे। 10 सवाल इज इक्वल टू 40 मार्क्स। 40 मार्क्स अगर मेरे एक सब्जेक्ट में आ गए तो ऐसे 40 में दूसरे में ला सकता हूँ, 40 तीसरे में ला सकता हूँ। एंड मैथमेटिक्स वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर, है ना। अगर हम तीनों के अंदर देखें तो मैथमेटिक्स सबसे डिफिकल्ट आया था इस बार कंपेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री वाज द सिंपलेस्ट, फिजिक्स बीच के अंदर था, और मैथमेटिक्स वाज द मोस्ट डिफिकल्ट। तो उसने मोस्ट डिफिकल्ट पेपर के अंदर भी 40 मार्क्स ले लिए होंगे, सिर्फ अलजेब्रा तैयार करके। पूरा सिलेबस नहीं तैयार किया, सिर्फ अलजेब्रा के 9 टॉपिक तैयार करे, वो गया और पेपर के अंदर जाके 10 से 11 सवाल एकदम परफेक्टली सही करके आ गया, ठीक है ना। अब देखो उसने, अगर उसने अलजेब्रा, उसने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो 1 से 3 सवाल, उसने डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ा होगा तो 4 से 6 सवाल, एट एन एवरेज 5 सवाल, है ना। इंटीग्रल कैलकुलस कर रखा होगा तो 4 से 7 सवाल, ठीक है ना। अगेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 to 4 क्वेश्चंस, वेक्टर्स एंड 3D 3 to 5 क्वेश्चंस, मैथमेटिकल लॉजिक 1 to 2 क्वेश्चंस, स्टैटिस्टिक्स 0 to 1 क्वेश्चंस। तो व्हाट की पैटर्न समझ में आ रहा होगा तुमको यहाँ पे, कि आपको अब प्रिपरेशन टॉपिक वाइज नहीं करनी चाहिए, आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए सेक्शन वाइज। मतलब अगर आप समझदार इंसान होंगे तो आप अलजेब्रा पूरा तैयार करके जाओगे, उसमें टॉपिक छोड़ के नहीं जाओगे। आप और समझदार इंसान होंगे तो उसके साथ बस आप क्या करोगे, मैं सोचूंगा 15-16 क्वेश्चन मुझे किस तरह से हो जाए, तो मैं अलजेब्रा के साथ एक और पकड़ लूंगा। मैंने सोचा अलजेब्रा यहाँ से आ रहा है, 11 तो यहाँ से ही हो गए, 9-10 हो गए अप्रोक्सीमेटली, इसका एवरेज 5 आ गया, तो 15 सवाल मेरे हो गए। 15 के साथ अगर मैं आखिरी के ये 2 टॉपिक और तैयार कर लूं तो यहाँ से 4 आ जाएंगे, तो इट बिकम्स 19।
प्लस 1 20 21 क्वेश्चंस तक मैं पहुंच गया। एंड दीज वेक्टर्स एंड 3D आर वेरी सिंपल टॉपिक्स, 2 ही टॉपिक है छोटे छोटे, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते भी नहीं है, आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। मैथमेटिकल लॉजिक 1-2 घंटे में तैयार किया जा सकता है, इसको आप आसानी से कर सकते हो। स्टैटिस्टिक्स सीख दो, 1-2-3 घंटे में तैयार हो जाता है, आप इजीली कर सकते हो। तो बेसिकली अगर हम ऐसे देखें कि अगर हमने अलजेब्रा है ना, डिफरेंशियल कैलकुलस, वेक्टर्स 3D और मैथमेटिकल लॉजिक स्टैटिस्टिक्स कर लिया तो हमारे बहुत नंबर आ गए। अगर मेरे को इतना भी नहीं करना तो मैं इसमें से अगर ये रिमूव भी कर दो डिफरेंशियल कैलकुलस तो भी 11 यहाँ से थे, 11 + 4 14 + 2 16 क्वेश्चंस में अटेम्प्ट कर सकता हूँ पेपर के अंदर इजी। एंड 16 क्वेश्चंस आर मच। 16 सवाल अगर आपने करेक्टली कर दिए पेपर के अंदर तो आपकी परसेंटेज तो 99 आ जाएगी पेपर के अंदर। प्रॉब्लम क्या है, पूरा सिलेबस तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लगता है मैं सब कुछ कर डालूंगा, आपको सब कुछ नहीं करना है। आपको इस तरह से, जो मैंने यहाँ पे इस डेटा को मैं शेयर भी करूंगा ग्रुप के ऊपर, 2 आर्टिकल्स के फॉर्म में, आप उन आर्टिकल्स को पढ़ सकते हो, मैंने लिखे हैं आर्टिकल, आप उन्हें पढ़ सकते हो। एक स्टूडेंट जो 11th 12th में है उसकी स्ट्रेटजी क्या है? Yes, let me mute. Somebody has turned their mic on. Please turn off your mic, please. Yeah, thank you. मैंने सबके माइक्स ऑफ कर दिए हैं, रीजन बीइंग की दिक्कत आएगी फिर। लेट मी गेट बैक टू व्हाट अबाउट वेयर आई वाज। अब आप देखो इसके अंदर, अगर आप इसके अंदर डिफरेंशियल, अगर आप 11th आप 12th की क्लास के स्टूडेंट हो, आपको बोर्ड्स का एग्जाम लिखना है, सो इट विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस फॉर यू गाइस टू प्रिपेयर कैलकुलस, क्योंकि कैलकुलस अगर वेक्टर्स 3D और इन टॉपिक्स को हम अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो अगर हम वैसा करें, सिर्फ 12th का सिलेबस ढंग से प्रिपेयर करें, तो ये 5 क्वेश्चन यहाँ से आ गए, 6 क्वेश्चन यहाँ से आ गए। अगेन आई हैव 11 क्वेश्चंस हियर, 11 + 4 becomes 15, 15 + 2 becomes 17, एंड 17 के साथ अगर मैं ये मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स, ये 3 12th के टॉपिक्स और तैयार कर लूं, प्रोबेबिलिटी मैट्रिसेस, ठीक है ना, ये टॉपिक्स और तैयार कर लूं, तो अगेन आई एम वे बियॉन्ड 17-18 क्वेश्चंस इन दिस पेपर। आप समझ रहे हो मेरी बात? मतलब आपको पूरा सिलेबस नहीं तैयार करना, आपको ऐसे सेक्शंस प्रिपेयर करना है। अगर हम सेक्शंस के अंदर प्रिपेयर करेंगे तो हम 50-60% सिलेबस बहुत इजीली और बहुत कॉन्फिडेंटली कवर कर सकते हैं। नाउ व्हाट मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर डूइंग, एंड दे आर नॉट फॉलोइंग दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटजी। What they are trying to do is they are going from topic to topic, है ना, एक टॉपिक यहाँ से कर लिया, 2 यहाँ से कर लिया। उसमें क्या होगा, जब आप पेपर सॉल्व करने जाओगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे, क्योंकि आप पढ़ के गए थे कोई और टॉपिक, आपने डिटरमिनेंट्स पढ़ के गए, क्वेश्चन आ गया मैट्रिसेस के अंदर से, क्योंकि वो तो अलजेब्रा का टोटल लेके चल रहे हैं ना, वो टॉपिक वाइज पेपर बना ही नहीं रहे। और बहुत कुछ किस्मत पे हो गया, हम ये पढ़ के गए थे सर ये आ गया, हम ये पढ़ के गए थे ये आ गया। तो किस्मत का खेल खत्म करने के लिए आपको सेक्शंस में प्रिपरेशन करनी चाहिए, आपको टॉपिक्स में प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए। दिस इज द ग्रेटेस्ट थिंग दैट यू कैन डू अबाउट चूजिंग द 50-60% सिलेबस दैट वी हैव ऑलरेडी टॉट। अगर तुमको ये बात सेंसिबल लग रही है तो राइट एस इन द चैट बॉक्स। इफ यू फाइंड दिस एडवाइस सेंसिबल देन राइट एस इन द चैट बॉक्स। ठीक है, आई होप इट वाज सेंसिबल इनफ। यस यस यस, थैंक यू फॉर गिविंग मी द अफर्मेशन दैट आई एम टॉकिंग सेंस। So the logic here was, if you target everything, you target nothing. You need to target small portion of syllabus. देखो हर इंसान जेईई के एग्जाम में टॉप रैंक ही लाना चाहता है, सब चाहते हैं 100% आ जाए, लेकिन जो 100% स्कोर करेगा वो छोटे छोटे टर्म्स में सोचेगा। इट इज ए मैराथन रेस, ठीक है ना, इट इज नॉट अ 100 मीटर डैश कि आप भागेंगे और खत्म हो जाएगी, नहीं। आप पेपर में जाओ स्ट्रेटेजी के साथ, क्या जाना चाहिए, मैं 50% क्वेश्चन सही कर लूं किसी तरीके से, अगर मैं ये स्ट्रेटेजी लेके जाऊंगा तो मेरा टाइम डबल हो गया, मेरा अटेम्प्ट में टाइम डबल हो गया, टाइम का प्रेशर खत्म हो गया, परफॉर्मेंस का प्रेशर खत्म हो गया, क्योंकि 50% पेपर के बारे में सोच रहा हूँ, 100 के बारे में नहीं सोच रहा। और 50% करके 60% करके मैं 99% स्कोर कर सकता हूँ, ठीक है ना। दैट इज द ग्रेटेस्ट टेक अवे फॉर व्हाटएवर डिस्कशन वी डिड टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। नाउ आई हैव बीन यूजिंग दिस वर्ड वेरी कंसिस्टेंटली दैट यू शुड कमांड अ टॉपिक। तो व्हाट डू आई मीन बाय कमांडिंग अ टॉपिक? कमांडिंग का मतलब क्या होता है? सो देखो, एक आईडीजी प्रिपरेशन के हर टॉपिक के अंदर या जेईई प्रिपरेशन के ये इंपॉर्टेंट 6 एलिमेंट्स हैं। यू शुड नो द राइट कंटेंट, पहली बात। प्रैक्टिस हमारी बहुत सही होनी चाहिए टॉपिक की, जो डाउट्स आए प्रैक्टिस के बाद वो रिजॉल्व होने चाहिए, हम प्रॉपर रिवाइज कर पाए, टेस्ट दें, और हमारे पास कोई मेंटर होना चाहिए जो हमें टाइम टू टाइम बताता रहे कि हमें क्या करना है। क्योंकि मेरे ख्याल से जैसे मैंने आपको बताया, ऐसा आपको काफी कम लोगों ने बताया होगा इस पॉइंट ऑफ टाइम तक। बताया होता तो आपने उतना ही सिलेबस तैयार किया होता, 100% टाइम 50% टॉपिक्स में दिया होता, ना कि उल्टा 50% टाइम 100% टॉपिक्स में देते हैं, ठीक है। तो आपकी प्रिपरेशन का लेवल बहुत अच्छा हो जाता है अगर आप इस एडवाइस को फॉलो करते हो। सो यू नीड अ वेरी गुड मेंटर इन योर लाइफ टू डू ऑल ऑफ दिस एक्टिविटी, राइट। Now again, what are the elements of doing this? तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक इंसान के पास क्या क्या होना चाहिए। देखो, उसके पास एक माइंड मैप होना चाहिए, कंपेंडियम होना चाहिए, उसको स्टैंडर्ड प्रॉब्लम टाइप्स पता होने चाहिए। मतलब क्या है कि क्वेश्चन में कोई एक स्टूडेंट से मैंने पूछा कि ये पेपर के अंदर क्वेश्चन किस टॉपिक से आया था, तो उसने पता मुझे आंसर दिया, सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल था। मैंने एक दूसरे स्टूडेंट से पूछा कि ये
ये बताओ ये टॉपिक कहाँ से आया था, ये क्वेश्चन कहाँ किस टॉपिक से आया था। उसने मुझे आंसर दिया सर ये लोकेशन ऑफ रूट्स के अंदर 5 तरह के सवाल बनते हैं, उसके अंदर दूसरे तरह का सवाल है, ठीक है ना। अब ये स्टूडेंट जिसने ये आंसर दिया उसको मच बेटर क्लैरिटी है सिलेबस की, टॉपिक्स की, क्योंकि उसे प्रॉब्लम टाइप्स पता है। आप लोग से दिक्कत क्या, आप लोग प्रॉब्लम के टर्म्स में सोचते हैं, कॉन्सेप्ट्स के टर्म्स में सोचते हैं, लेकिन प्रॉब्लम टाइप्स के टर्म्स में नहीं सोचते। मतलब अगर मैं देखूं फंक्शंस के चैप्टर के अंदर कितने तरह के सवाल बनते हैं, अगर मैं रिकॉग्नाइज कर पाऊंगा तो जो पेपर में क्वेश्चन पूछा है उसको उस कैटेगरी में डाल पाऊंगा, वो टेक्निक फास्ट लगा पाऊंगा और आंसर निकाल पाऊंगा। तो आपको सारी प्रॉब्लम टाइप्स पता होनी चाहिए हर सब टॉपिक के अंदर, कि देखो अगर ये रेंज का सवाल है तो इसमें कितनी प्रॉब्लम टाइप्स हैं, अगर डोमेन का सवाल है तो इसमें कितनी प्रॉब्लम टाइप्स हैं। अगर हमें ये नहीं पता होगी तो देन इट विल बी अ बिग मेस, राइट। ऑल्सो यू शुड हैव इनफ प्रैक्टिस टू गेट एक्यूरेट आंसर्स। लोग पेपर करके आते हैं फिर उनके आंसर्स नहीं आ रहे होते पेपर के अंदर, राइट। किसी का कुछ क्वेश्चन आ रहा है पीछे से, लेट मी टेक दिस क्वेश्चंस आल्सो। तो मैं एक बता लूं, अपनी बात खत्म कर लूं, फिर मैं आपके क्वेश्चन लेता हूं। तो इनफ प्रैक्टिस होनी चाहिए, हमने जितना भी किया उसकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हमारे एक्यूरेट आंसर्स आए पेपर के अंदर, है ना। घर पे आने की अलग चीज होती है और पेपर में एक्यूरेट आंसर आना अलग चीज होती है। और उसके जो मैं जितना भी सोच रहा हूँ ना उसके लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रखे हूँ, सो दैट मुझे एक्चुअली पता पड़े कि जो मुझे लगता है और जो रियलिटी वो सेम है। नहीं तो देयर कुड बी टू डिफरेंट वर्ल्ड, एक तुम्हारी दुनिया और एक पेपर बनाने वाले की दुनिया, तो दोनों दुनिया साथ में आनी चाहिए, देन तुम्हारा एक्चुअल रियल रिजल्ट आएगा। अदरवाइज तुमको लगेगा तुम बहुत इंटेलिजेंट हो लेकिन तुम्हारा रिजल्ट नहीं आ रहा, राइट। सो दिस इज व्हाट आई मीन बाय कमांडिंग टॉपिक। अब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि माइंड मैप का मतलब क्या होता है, क्योंकि मुझे लगता है यही क्वेश्चन आ रहे होंगे माइंड मैप कंपेंडियम क्या होता है। सो लेट अस टेक दिस एरिया। तो देखो तुम्हारे पास क्या है, जैसे इस तरह का एक पूरी ज्योग्राफी होनी चाहिए टॉपिक की। फंक्शंस की फंक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन के अंदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या है, देन यू मूव टुवर्ड्स स्टैंडर्ड फंक्शंस, उसका आप स्टडी करते हो, उसके डोमेन कोडोमेन रेंज ग्राफ इक्वेशंस इन इक्वेशंस स्टडी करते हो। पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन पे स्पेशल एम्फेसिस देते हो, मॉडुलस, जीआईएफ, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम। फिर आप अलजेब्रा के अंदर जाते हैं, है ना, अलजेब्रा ऑफ डोमेन देखते हैं। फिर आप रेंज देखते हैं, रेंज में देखते हो कि अलजेब्रा ऑफ डोमेन, अलजेब्रा ऑफ रेंज नहीं होता, है ना। उसमें हमारे पास ये 7 टेक्निक होती है जिनसे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। देन यू मूव टुवर्ड्स क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन कितने तरह से किया जा सकता है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स बनती है वो हम सारा देखते हैं। देन यू मूव टुवर्ड्स कंपोजिशन, कंपोजिशन के अंदर कितने तरह के, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसमें कितने तरह के कॉन्सेप्ट है वो हम देखते हैं। देन यू मूव टुवर्ड्स इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है, नॉन बाइजेक्टिव फंक्शन, पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन का इनवर्स कैसे लिखेंगे, उसकी इक्वेशन और ग्राफ से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनते हैं, सेल्फ इनवर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, राइट। एंड देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल इक्वेशन जो आजकल तो मेन से पूछा जा रहा है, पहले एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता था। तो रिकॉग्निशन, सब्स्टिट्यूशन, पॉलिनोमियल बेस्ड क्वेश्चंस, फर्स्ट प्रिंसिपल, इनका यूज करके हम फंक्शनल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। तो तुम्हारे पास हर चैप्टर का ऐसा एक डायग्राम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दिस विल गिव यू द स्केलेटन, इसके बेसिस के ऊपर आप इसके अंदर डिटेलिंग फिल कर पाओगे। अब अगर मेरे पास ये नहीं है तो मेरे पास क्या होगा, मेरे बहुत हेजी आइडिया होगा, टॉपिक आपस में मिक्स हो रहे होंगे, कोई बाउंड्रीज नहीं होंगी, मैं क्लियरली बता नहीं पाऊंगा कि कहां से पूछा गया कहां से नहीं पूछा गया, राइट। So it is very important to have such kind of mind map of each and every chapter, या एटलीस्ट जो 50-60% आप तैयार करके जा रहे हो उसका आपके दिमाग में ऐसा होना चाहिए, सिर्फ पेपर पे नहीं होना चाहिए, दिमाग में होना जरूरी है, राइट। Now what do I mean by कंपेंडियम? अब देखो कंपेंडियम का मतलब क्या है, हमारे पास इससे पूरा ग्रंथ है जो हमने लिख रखा है प्रैक्टिस के नाम पे ना, क्लास की हमारे रजिस्टर, इसको हम बार-बार पढ़ते हैं एग्जाम में जाने से पहले। इट टेक्स ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ टाइम फॉर यू टू रिवाइज इट। मैं किसी से बोलूं कि तुमको कल 10 टॉपिक का टेस्ट देना है तो कितने लोग होंगे जो रेडी होंगे? बहुत कम लोग होंगे रेडी होंगे, क्योंकि उनको रिवाइज करना पड़ेगा। बोलेंगे सर मेरे को एक दिन तो दो रिवाइज करने के लिए, फिर मैं दे दूंगा टेस्ट। तो उनको वो जो दिन लग रहा है रिवाइज करने में, वो क्यों लग रहा है? बिकॉज ऑल ऑफ देयर नॉलेज इज स्कैटर्ड, बिखरा पड़ा हुआ है, उनके पास है ही नहीं वो नॉलेज। तो आपको हर सारे नॉलेज को एक जगह इकट्ठा करना चाहिए। आप एक शीट ऑफ पेपर ले लो, उसको बीच में से फोल्ड करोगे, उसके 4 पार्ट्स हो जाएंगे। उसमें आप लिखो कि इसके इस टॉपिक के कीवर्ड्स, डायग्राम और फॉर्मूला। कीवर्ड्स मतलब कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, क्या आगे एक वर्ड लिख दिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डेफिनेशन लिख सकता हूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड abc बिलोंग्स टू रियल नंबर। मैं से डेफिनेशन लिख सकता हूँ चीजों की, ठीक है ना। वंस आई स्टार्ट विद कीवर्ड्स, बेसिक फार्मूला, डायग्राम, फ्लो चार्ट, ऐसे मैंने बहुत ब्रीफ में लिख के, ऐसे मैंने पॉइंट लिख के आगे पीछे सारा टॉपिक कवर कर लिया। फिर जब मुझे रिवाइज करना है तो मैंने सब पेन लिया, मूव किया। अगर एक ही शीट ऑफ पेपर है तो आई कैन रिवाइज इट रियली फास्ट। अब मेरे पास एक कॉपी है, उसमें 200 पन्ने, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टास्क टू रिवाइज। रीजन बीइंग वेरी सिंपल, आपकी जो आंख है वो पढ़ती नहीं है, वो एक तरह का स्कैनर है, पूरा डेटा स्कैन कर लेती है, तो पेज ऐसा होगा स्कैन हो जाएगा। अब अगर स्कैन हो गया और आप हर दिन एक ही चीज पढ़े जा रहे हो, इमेजिन करो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तुमने ऐसे 10 पेज 15 पेज बना रखे हैं और रोज सुबह उठ के तुम एक बार पढ़ लेते हो और वो सारा डेटा स्कैन हो जाता है, तो आप हर दिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज कर रहे हो। अब इस बात के चांसेस बहुत हाई है कि जब आप पेपर देने जाओगे तो आपके दिमाग में पेज की मेमोरी, इमेजेस छप चुकी होंगी और आपने फोटोग्राफिक मेमोरी डेवलप कर ली होगी पेपर के अंदर।
वंस यू हैव दैट काइंड ऑफ फोटोग्राफिक मेमोरी, अब पेपर अटेम्प्ट करना बहुत सिंपल हो जाएगा, क्योंकि आप जैसे ही उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में लाने की कोशिश करोगे, वो पूरा पेज उठ के आ जाएगा, और पूरा पेज उठ के आ गया तो आप बहुत इजीली उस चीज को कर सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी फास्ट वे, आप एक टॉपिक को 1 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं अगर ये चीज आपके पास है। तो आपने 15 टॉपिक रिवाइज किए तो आपको हार्डली 15 मिनट लगेंगे रिवाइज करने के लिए। अब हमारे पास ये नहीं है तो क्या होगा, आप कॉपियां ही खंगालते रह जाओगे, ये टॉपिक यहाँ से, ये टॉपिक यहाँ से। तो इसके सोर्सेस क्या है, आपके जो क्लास नोट से वो आ जानी चाहिए इसके अंदर, जो आपने प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करी थी उसमें से कुछ नया सीखा तो वो आ जाना चाहिए, आपने कोई अच्छा सवाल पेपर में देखा तो वो आ जाना चाहिए, असाइनमेंट टेस्ट सब कुछ जितना भी आप जानते हैं। तो दिस शुड बी योर नॉलेज ट्रेजर। सारा का सारा जो आपने आज तक पढ़ा वो सारा इस एक पेज के अंदर होना चाहिए, और ये अगर एक पेज में आ गया तो यू विल बी सच अ पावरफुल ह्यूमन बीइंग, यू विल बी सच अ पावरफुल ह्यूमन बीइंग कि आपको सब कुछ याद होगा हर समय, और ये होना चाहिए। और जब तक ये नहीं होता तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो आप जो अनकॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं ना अंदर से कि मेरे को नहीं सर भरोसा, मतलब मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं होता पेपर में, मेरे को लग नहीं रहा होता कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, क्योंकि आपको याद नहीं है ना। अगर आप किसी चीज को रिकॉल नहीं कर सकते तो आपको याद नहीं है। और हम क्या कर रहे हैं, हम कॉपियां पलटा रहे हैं। कॉपियां पलटाने से कुछ नहीं होगा, आपको याद होना चाहिए, आप रिकॉल कर पाओ चीजों को। पेपर में उसी चीज का टेस्ट होता है ना, आप क्वेश्चन आता है तो हमें फॉर्मूला रिकॉल करना पड़ता है। अगर हम रिकॉल नहीं कर पाएंगे तो हम उस चीज को रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, राइट। और उसके लिए ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज यू शुड हैव अ वेरी क्लियर आइडिया अबाउट प्रॉब्लम टाइप्स। देखो यहाँ पे मैंने रेंज लिया और रेंज की क्लियर देखे कि इसमें 7 तरह के सवाल बनते हैं। once you have this very clear idea कि you have 7 types of questions, 8 टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो जैसे क्वेश्चन आएगा आप रिकॉग्नाइज करोगे भाई 7 में से कौन सा मेथड लगाना है। आपने फटाक से वो लगाया मेथड, आंसर निकाल दिया। नहीं तो आप 1-2 मिनट तो सोचते ही रहोगे कि इसमें क्या लगाना है, कॉन्सेप्ट से मैं इसको लेके आगे कैसे बढ़ूं। दैट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम, और आपको जो पर क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगेगा बहुत बढ़ जाएगा। तो अगर आपका पेपर टाइम भी खत्म नहीं होता, ज्यादा टाइम लगता है, इसका मतलब बहुत सिंपल है, आपको प्रॉब्लम टाइप्स नहीं पता है और आप कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम सॉल्व करना विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस। ना प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस में अभी जो जिस तरह का पेपर अभी आ रहा है 2021 के अंदर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड सॉल्व वन रेफरेंस बुक। अगर आपने किसी टॉपिक को, मतलब मान लो कि आप छोटा सा पोर्शन चूज करो सिलेबस का, लेकिन उसकी रेफरेंस बुक जरूर सॉल्व करो। है तो इतने सारे सोर्सेस, लेकिन रेफरेंस बुक अगर आपने ढंग से नहीं कर रखी होगी तो उसका हो नहीं रहा पेपर में जाके क्वेश्चन, क्योंकि वो ऊपर ऊपर नहीं पूछ रहा है, वो आजकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मेंस में पूछने लग गए। सो इट विल बिकम रियली डिफिकल्ट फॉर यू टू डिलीवर, राइट। नाउ अगेन आपको क्या करना चाहिए बेसिकली जब प्रिपेयर करें, जो ये 11th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत रेलिवेंट होगा, कि आपको टीचर को कॉपी करने की कोशिश करनी चाहिए कि टीचर ने क्लास में कैसे बताया, उसकी क्या टेक्निक थी, उसको कॉपी करिए। सॉल्ट एग्जांपल्स को स्पेशली इंपॉर्टेंस दीजिए, उनको देखिए, उसमें अपने एक्सपेरिमेंट करिए कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, सॉल्ट एग्जांपल में कैसे सॉल्व कर रखा है, और फिर अनसॉल्व की तरफ मूव करिए। Now it is very important for a student to do questions which are on his level। जैसे अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एडवांस के सवाल मत करिए ना, उसका कोई सेंस नहीं है। आप बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ मत जाइए, लेकिन आपको जो जोन है, जिस जोन के अंदर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेंस का जोन है, उसके सारे प्रॉब्लम जितने भी तरह के बनते हैं आपको बहुत ढंग से आने चाहिए। ठीक है, मल्टीपल टॉपिक से क्वेश्चन मिक्स होकर जो आ रहे हैं वो आपको नहीं आता, नो वरीज, उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा, सॉरी, उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट जो हमारा जोन है हम उस पर बहुत अच्छे से फोकस करें तो हम बहुत अच्छा रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। मैंने देखा कि स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस उठा लेते हैं जो उनके लेवल के ही नहीं होते, पर अल्टीमेटली वो स्ट्रगल करते रहते हैं कि मुझे आ जाए, मुझसे हो जाए, मैं कुछ कर लूं किसी तरीके से, फिर वो होता नहीं एट द एंड ऑफ द डे। अपने लेवल से थोड़ा मॉडरेटली डिफिकल्ट आप टॉपिक क्वेश्चन चूज करिए, इस बात की बहुत अच्छे चांसेस है कि धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता जाएगा और एक समय आप एडवांस की क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक लेवल जिसमें आपको इतना एफर्ट ना लगे, सो दैट प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म हो जाए। मेरे को बहुत जो इनिशियल साइकोलॉजिकल एनर्जी चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, काम करने के लिए, वो कम हो जाए, राइट। तो हमने बहुत बेसिक बातें बोली कि एक हमें पर्पस बहुत जरूरी क्लियर होना चाहिए कि हम प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं। सो प्रैक्टिस का पर्पस हमेशा ये होता है एप्टीट्यूड गेन करना। स्टूडेंट को ये नहीं पता होता कि हम प्रैक्टिस ही क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो वी शुड हैव दिस, व्हाटएवर वी आर ट्राइंग टू डू इज टू गेन राइट काइंड ऑफ एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब क्या है कि वो एग्जाम के मैंडेट को फुलफिल करे। मतलब एप्टीट्यूड जो मेंस के लिए चाहिए और जो एडवांस के लिए चाहिए वो अलग है। तो आप जो भी एग्जाम को फोकस कर रहे हैं उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन करें। आपके पास सही सोर्सेज होने चाहिए। अगर आप गलत सोर्सेज को आप एनसीईआरटी उठा के मेंस की प्रिपरेशन करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है ना। आप बहुत ही डिफिकल्ट बुक उठा लेंगे और उसके मेंस की प्रिपरेशन करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो चूज द राइट काइंड ऑफ सोर्सेज एंड बिल्ड एप्लीकेशन पावर, क्योंकि अल्टीमेटली आज का पेपर यही टेस्ट करता है कि आपकी एप्लीकेशन पावर कितनी है। अगर आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं कर सकते तो इट इज एज गुड एज नॉट नोइंग द टॉपिक एट ऑल। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, वी शुड डेवलप एप्टीट्यूड। जेईई का एग्जाम इस चीज का एग्जाम नहीं है कि आपको कितना आता है, आपको कितना नहीं आता। वो इस चीज का एग्जाम है कि आपके अंदर कितना एप्टीट्यूड है, आप कौन हो,
वो IITians को चूज कर रहे हैं। IITian कौन इंसान है? जिसके अंदर एप्टीट्यूड है। अगर आप एप्टीट्यूड नहीं डेवलप कर पा रहे अपनी पढ़ाई से विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, तो आप नहीं परफॉर्म कर पाओगे पेपर में जाके, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो हम जो भी कर रहे हैं उसका एक ही मुद्दा होना चाहिए, एक ही टारगेट होना चाहिए, आई शुड डेवलप एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मतलब मेरी एबिलिटी ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो जाए विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। मैं 1 महीने में भी कर सकता हूँ, 1 साल में भी कर सकता हूँ, 1 दिन में भी कर सकता हूँ, अब जैसे भी करो, लेकिन ये मुद्दे की बात है, ये होना चाहिए। अब आज हमने जो डिस्कस किया उसके अंदर हमने बहुत सारी बातें देखी। अब मैं कल तुमको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि ये सारी चीजें जो हमने आज डिस्कस करी, इतने सारे एलिमेंट्स को बहुत ही फास्ट कैसे करें यूजिंग मॉक टेस्ट, राइट। सो मॉक टेस्ट काफी लोग लिखते हैं, काफी लोग नहीं भी लिखते हैं, उनको ये नहीं समझ में आ रहा होता बेसिकली कि मॉक टेस्ट लिखने का पर्पस क्या है, मॉक टेस्ट कैसे लिखनी चाहिए, मॉक टेस्ट लिखने के बाद क्या करना चाहिए, मॉक टेस्ट लिखने के पहले क्या करना चाहिए। सो कल हम देखेंगे कि मॉक टेस्ट को इफेक्टिवली कैसे लिखें, और जो भी चीज मैंने आपको बताई इसको कंप्रेस करके बहुत कम टाइम में क्यों कैसे करें, क्योंकि हमने इतनी सारी जो बातें बताई करने का टाइम जो अभी एग्जाम देने जा रहे हैं शायद उनके पास ना हो। सो हाउ टू मेक दिस प्रोसेस वेरी फास्ट, हाउ टू यूज मॉक टेस्ट टू डू इट ऑल, राइट। तो हम कल ये डिस्कस करेंगे। तो कल 6 बजे हमारा जो सेशन होगा वो इस चीज के लिए होगा। मैं इतने सारे क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करूंगा। कोई और भी क्वेश्चन तुम्हारे पास मॉक टेस्ट के लिए तो मुझे डीएम करो, मैं वो भी आंसर करूंगा। अब तुम्हारे पास बहुत ही सिंपल असाइनमेंट है। असाइनमेंट क्या कहता है? मेक अ लिस्ट ऑफ 60% टॉपिक्स। अब आज की क्लास के बाद तुम जाओगे, घर बैठोगे, और घर बैठने के बाद तुम्हें बहुत सिंपल असाइनमेंट करना है। ये बहुत लास्ट 1 मिनट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन इस क्लास का है, और मैं तुम्हें बहुत ही सिंपल टास्क दे रहा हूँ, बहुत मुश्किल टास्क नहीं, लेकिन आप सबको करना है टास्क। टास्क क्या कह रहा है कि मेक अ लिस्ट ऑफ 60% टॉपिक्स दैट यू वांट टू फोकस। अपने सिलेबस के 60% टॉपिक्स चूज करो जो आपका कोर होंगे, जिसका क्वेश्चन आप पेपर में जाके आपका गलत नहीं होगा, उनकी एक लिस्ट बनाओ, और वो लिस्ट बना के मुझे भेजो, जो मेरा नंबर है उसके ऊपर। मुझे अगर उसमें अगर लगा कि ये ठीक है तो मैं ओके बोल दूंगा, अगर मुझे लगा कि कुछ इसमें करेक्शंस होनी चाहिए तो मैं तुमको बताऊंगा कि उसमें क्या करेक्शंस होनी चाहिए, राइट। तो ये अगेन इट इज लाइक आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू गाइज फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांग रहा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा अच्छा रिजल्ट आ जाए, तुम अगर अच्छी रास्ते पे जाओगे, तुम अच्छा कर पाओ, बस मैं तुमसे चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें असाइनमेंट करने को दे रहा हूँ। तुम नहीं भी करोगे तो उससे मेरा तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा बहुत नुकसान हो सकता है। So it is highly recommended that if you do this exercise of making a list of 60% topic, that should be the focus of your preparation, and you should know it कि मेरा यही focus है, मैं इस पे focus करूंगा, है ना। And it will become very important for your IIT preparation in next। देखो अभी कितने दिन बचे हुए हैं, 63 डेज बचे हुए हैं मई अटेम्प्ट के लिए, 36 डेज बचे हुए हैं, है ना, तुम्हारे अप्रैल अटेम्प्ट के लिए। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा हम फोकस रखें, और फोकस मेंटेन करने के लिए हमें पता होना चाहिए हमारा फोकस कहाँ है, इसलिए इन 60% टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर तुमको ऐसा लगता है कि आज का सेशन तुम्हारे लिए यूजफुल था, तो राइट यूजफुल यू इन द चैट बॉक्स, यू इन द चैट बॉक्स। ओके, गुड गुड, थैंक यू। मैं तुम्हारे क्वेश्चन देख लेता हूँ। कंपेंडियम इज इक्वल टू शॉर्ट नोट्स, यस यू कैन से दैट, बट दीज आर वेरी वेरी शॉर्ट नोट्स, राइट। किसी का और कुछ क्वेश्चन है क्या? TYQ of as many as years you can, but usually 10 years are more than enough, ठीक है। क्लास 11 के लिए इसमें से बहुत सारी चीजें वैलिड है, आप पिक कर सकते हो, ठीक है ना। मेरे को लगता है कि क्लास 11 वालों को तो बहुत फायदा हो रहा है, उनको एक साल आगे की स्ट्रेटेजी पता पड़ रही है कि अगले साल क्या करना है, तो अच्छी बात है, आप अभी से उस चीज को ध्यान में रख सकते हो। सिलेबस पूरा खत्म करना जरूरी नहीं है, 50 to 60% सिलेबस खत्म करना जरूरी है, जो मैंने आपको क्लियरली बता दिया है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। इट वाज यूजफुल, यस, थैंक यू थैंक यू। ये अप्रैल अटेम्प्ट में भी हो सकता है, और ये और कैसे फास्ट हो सकता है, ठीक है ना। एप्टीट्यूड कैसे डेवलप करें ये मैं तुम्हें कल सिखाऊंगा। मेरे पास अभी 2 दिन और है। दिस वाज द फर्स्ट डे ऑफ आवर क्लास, दिस इज नॉट द लास्ट डे ऑफ द क्लास। ये फर्स्ट डे, मेरे को लगता है फर्स्ट डे में तुम्हें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी और तुम्हारे लिए काफी यूजफुल रही होगी, ठीक है। अगले 2 दिन के अंदर आप 6 o'clock आइए, रेगुलरली हम इस चीज को करेंगे। आई विल नॉट टेक मोर देन 30 to 60 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन कि आप कितने फास्ट क्लास कर रहे हैं। आई विल डू दिस फॉर 3 days, कम फॉर 3 days। आई विल गिव यू सो मच ऑफ नॉलेज इनटू IIT JEE प्रिपरेशन कि आपके सारे क्वेश्चन जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करें, ये सब मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर लूंगा। आई एम नॉट एबल टू दिस 60% सिलेबस, कोई बात नहीं, आपको जो 60% लगता है भेजिए, मैंने क्लियर स्ट्रेटेजी दी हुई है। मैं 1-2 आर्टिकल्स आपको पोस्ट करूंगा ग्रुप पे, वो आपको क्लियरली बताएंगे कि 60% सिलेबस कैसे चूज करना चाहिए, राइट। सिलेबस कंप्लीट, आप वही सवाल पूछ रहे हो साइक्लिक ऑर्डर के अंदर सिलेबस खत्म, मैंने आपको ऑलरेडी पूरे इसके अंदर स्टार्टिंग से क्या बताया, 50 to 60% सिलेबस खत्म करना है, पूरा सिलेबस की जरूरत ही नहीं है। आप 60% पे फोकस करो ना, उससे आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो आप डिजायर करते हैं। 60% अगर आप ढंग से करके जाएंगे तो इट विल बी एबल टू स्कोर 99% टाइम। आप 100% के चक्कर में करके जाएंगे, उसको आप आधा अधूरा प्रिपेयर करके जाओगे, आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे पेपर के अंदर, आपकी कोई भी परसेंटाइल नहीं है। So it is not important to complete the syllabus, it is important to complete 50 to 60% of the syllabus very efficiently.
That was the whole point of whatever I told you today, right? Any more questions or should we end it? हाँ हाँ, आई एम ऑलरेडी पोस्टिंग अ चैप्टर. मैं तुम्हें एक आर्टिकल पोस्ट कर रहा हूँ, कंपेंडियम कैसे प्रिपेयर करें मैंने समझाया. आई विल अगेन पोस्ट फ्यू मोर वीडियोस ऑन की हाउ टू डू रिवीजन. मैं ग्रुप के ऊपर बहुत सारे तुम्हें ऐसे वीडियोस पोस्ट करूंगा जो 30 मिनट्स की वीडियो में, सबको नहीं बता रहा क्योंकि काफी लोगों को पता होगा. मैं वो ग्रुप पे पोस्ट करूंगा, वो आप देख सकते हैं और अपने को फर्दर एनरिच कर सकते हैं, राइट? रिवीजन कैसे करें, कंपेंडियम कैसे प्रिपेयर करें, ये सब मैं आपको बताऊंगा. इनकी वीडियोस होंगे. 2 आर्टिकल शेयर करूंगा, वो आर्टिकल आपको जरूर पढ़ के आना, ठीक है? बस पीडीएफ ऑफ दिस स्लाइड में इस क्लास की रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, वहां से आपको फायदा होगा. डन. सो आई एम गोइंग टू शेयर अ लॉट ऑफ कंटेंट विद यू गाइस. आपको उसमें से जो भी ठीक लगे आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं. डन. इट वाज नाइस मीटिंग यू ऑल. Strategy for class 12th 11th standard group. I will do again a different workshop for that also. ये जो कर रहा हूँ ये तुम्हारे 11th वालों के लिए भी काम की है ना, डोंट वरी अबाउट इट. ये तुम्हारे लिए बहुत बहुत काम की है, इसमें आपको बहुत फायदा होगा जो चीज मैं बता रहा हूँ, अगर आप 11th वाले भी सुनेंगे तो. और खासकर 11th के लिए मैं अलग से एक और सेशन करूंगा, वो भी मैं डालूंगा, वो आप अटेंड करोगे तो उससे आपको और ज्यादा फायदा होगा, राइट? मैं बहुत स्पेसिफिक हो जाऊंगा 11th को लेके. चलो, इट वाज नाइस मीटिंग यू. Come again at same time 6 o'clock tomorrow. We'll start exactly on time. तो 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद में आओगे तो तुम्हारा नुकसान है, फिर मुझे रिपीट करने को मत बोलना, राइट? थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर कमिंग.